Hello students, so today we will be completing the exercise called 9.3. In the previous exercise we have learned regarding multiplication of monomial into monomial, but in this exercise we will be learning regarding multiplication of monomial with a binomial. Then what is monomial? Single term, one term is called monomial. On the other hand, binomial means two terms. The multiplication of monomial into binomial is the chapter for discussion or the topic for discussion for exercise 9.3. So for this you need to memorize or remember the two properties which we have studied in the previous classes of ours, that is called distributive property, in which you have learned A into B plus C. It means distributive property of multiplication over addition. Another was A into B minus C, which means distributive property of multiplication over subtraction. So the solution for this is you need to multiply the first term A into B. In the middle you find a plus symbol, so you need to put the same plus symbol in between the first and the second. Then you need to multiply the A with the C. इसका मतलब ये है कि आपको पहला वाला टर्म दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाला टर्म दोबारा थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली ये भी आंसर सेम ही आएगा, सो ऑपरेशन चेंज हो गया, प्लस के जगह पे मैं डालूंगा सिर्फ माइनस सिंबल. ये दो प्रॉपर्टी आपको याद करना है अगर इस एक्सरसाइज में आपको परफेक्ट बनना है तो. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट. इन B2 क्वेश्चन इट इज गिवन दैट you need to carry out the multiplication 4p comma q plus r. As you can see, in place of comma you can use multiplication symbol. As it contains two terms, you need to keep it in a bracket. After that you can see to the right side, where I have written two formulas, it is in the same form, a into b plus c. The solution will be 4p into q plus 4p into r. Since these two terms has only 4 as a factor, you will get 4 p into q is pq plus 4 variable is p into r is pr. This is the solution to the above question. Similarly, I am doing another bit, fourth bit, in which it is written a square minus 9 comma 4a. You can also write it as 4a into a square minus 9 to look like identity 2. So after this you need to do 4a into a square, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 4a into 9. तो ये आपका हो गया 4a cube minus 4 into 9 is 36, only single variable a. तो आंसर इज 36 है. इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो कि उसमें कॉलम के जैसे दिया है, लेकिन प्रोसेस विल बी द सेम. आपको दिया कि फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है a कॉमा सेकंड एक्सप्रेशन दिया है b plus c plus d. तो इधर देखने से आपको लगेगा सर आप तो पढ़ाए थे सिर्फ 2 ही टर्म होते, इधर 3 टर्म कैसे आ गए? 3 आने से भी आपको तरीका एक ही रहेगा. इधर आप क्या करते थे, फर्स्ट इंटू सेकंड करते थे, फर्स्ट इंटू थर्ड करते थे, लेकिन इधर क्या हो गया और एक टर्म हो गया जिसको हो गया बोलेंगे हम लोग क्या, फोर्थ टर्म. तो फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ, नथिंग चेंज विल बी डन. तो ये होगा a इंटू b प्लस c प्लस d. इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, a इंटू b प्लस है प्लस, फिर a into c plus a into d. Since it does not contain any sort of factor, as you can see, so you can write ab plus ac plus ad is the answer to the solution question number 2 bit 1. Similarly, I am doing another question number third bit of it. Same question number 2 का third bit देखिए, p comma 6p square minus 7p plus 5 दिया आपको. तो पहले तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5. तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म p इंटू 6p स्क्वायर, फिर बीच में क्या माइनस, फिर माइनस प्लस होगा तो प्लस p इंटू 7p, फिर
प्लस है प्लस p इंटू 5, तो ये आपका हो गया 6, फैक्टर है सिर्फ 6, p कितने इधर एक इधर दो, टोटल p हो गया 3, तो p टू पावर 3 माइनस 7 का 7, p कितने 1 और 1, p टू पावर 2 प्लस 5p इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. Similarly, question number 3, you need to find the same product, सेम मल्टीप्लिकेशन करना आपको. तो इसमें से मैं एक बिट कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में कर लेता हूँ आपके लिए, जो कि थर्ड बिट में है. आप देख सकते हो अपने अपने रेस्पेक्टिव बुक्स में. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट दिया है -10/3 p क्यूब इंटू 6/5 p 3 क्यूब. So same process which we have applied in 9.2. We need to group two things, one on factor of the fraction which is there in this particular set of question, and there is variable p cube q. So as you can see, in fraction we need to always simplify the fractions. So in opposite 3 and 6 are getting cancelled. So 3 1 ja 3 2 ja. Similarly 5 1 ja 5 minus 2 ja. So what is the remaining? Minus 2 into 2 in the numerator part and 1 into 1 in the denominator part, into p is there how many times? 1 3 5 4 times. Similarly q is also there in 4 times. The answer is 2 2 ja 4. In multiplication no need of checking the highest number. So minus 4 by 1 p 4 q 4 ऐसे भी लिखने से होगा, या फिर -4 p 4 q 4, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1. इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे. लास्ट क्वेश्चन जो आपका है एक्सरसाइज में, जो कि आपको लास्ट 2 क्वेश्चंस बचा है जिसमें आपको सिंपलीफाई करना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बिट में कर लेता हूं, क्योंकि उसमें 3 फॉलोइंग बिट्स आपको दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 का बिट बी देखिए, सिंपलीफाई दिया, पहले दिया है सिंपलीफाई, उसके बाद वैल्यू ढूंढने के लिए बोला गया है. पहले इसको सॉल्व करेंगे हम. तो जब हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है. तो आप इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करोगे. तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू ए प्लस a इंटू 1, और लास्ट को क्या था ब्रैकेट के बाद प्लस 5. तो इधर a कितने हैं, 1 और 2 3 हो गए, तो a टू पावर 3 प्लस a कितने हैं 2, a स्क्वायर प्लस a इंटू a इज a प्लस 5. क्या आप देख सकते हैं इधर कुछ लाइक टर्म्स है, इधर कुछ भी लाइक टर्म्स नहीं है. सिर्फ a को देखकर लाइक टर्म्स मत जज करिए. मैंने लाइक टर्म का डेफिनेशन क्या बताया था? लाइक टर्म उसको कहते हैं जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ साथ पावर भी सेम होता है. इधर वेरिएबल सेम है, a 3 बार है, लेकिन पावर हर जगह अलग अलग होता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अनलाइक टर्म्स कहलाएगा. तो दिस इज द आंसर फॉर सिंप्लीफिकेशन. इसके बाद क्या पूछा है क्वेश्चन में, वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स गिवन. जैसे बिट नंबर 1 में दिया है कि a का जगह पे क्या डालना है आपको, 0. तो इसका आंसर क्या होगा, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5. तो 0 का क्यूब हमें कितना होगा, 0 क्यूब हो गया, 0 को 0 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 0 का स्क्वायर भी 0, 0 प्लस 5. तो आंसर इज 5 एट द लास्ट. सिमिलरली बिट नंबर 2 में दिया है a का वैल्यू आप 1 डाल के देखिए. ये क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5. तो 1 का क्यूब कितना, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, बिकॉज यू मल्टीप्लाई 1 विथ 100 टाइम्स विथ 1, यू विल ऑलवेज गेट 1 एज द आंसर, प्लस 1 प्लस 5. तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 is 8 is the answer. Similarly, the last bit of question number 4b, you need to put a is -1. अगर मैं -1 डालूंगा a की जगह पे, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5. तो जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंट पावर में सिखाया था कि अगर बेस का पावर, अगर बेस में नेगेटिव है, अगर आपको याद होगा बेस में नेगेटिव है और पावर ऑड लगा है, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा. सिमिलरली अगर बेस में नेगेटिव है, पावर इवन है, मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा. और आपको ऑड नंबर इवन नंबर तो बचपन से पढ़ के आए हो. तो इधर देख सकते हो आप, बेस में नेगेटिव है, पावर है ऑड, तो आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा. और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1 के साथ 1 ही आएगा. प्लस बेस में नेगेटिव है, पावर है इवन, बिकॉज़ 2 इज इवन, आंसर विल बी +1.
इधर ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो पावर कुछ नहीं है, प्लस माइनस इज -1 प्लस 5। आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बिकम कैंसलाइज, तो बचा क्या -1 प्लस 5। माइनस प्लस इज माइनस, यू नीड टू डू इन योर ब्रेन, और रफ में करो, कभी भी ऐसा मत लिखना, ये गलत है। ऐसा अगर करोगे आंसर क्या होगा -1, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 का क्या लगा -1, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने से -1 रहेगा नहीं। आप क्या करोगे, इधर ब्रेन में माइनस करोगे, इधर रफ में माइनस करोगे। 5 से 1 जाने से 4, 5 बड़ा है तो +4। दीज आर द 3 आंसर्स of the simplified expression. So now we will go on to the last question of exercise 9.3. So in which 9.3 exercise question number 5 we need to add two of the given expressions and we need to subtract two of the given expressions. So I will be doing two questions or two bits of this question number 5, one addition and one from subtraction. So question number 5, B number, it is given that 2x z minus x minus y and 2y z minus y minus x. So as the heading is given add, you can go for horizontal method of solving this expression. So 2x z minus x minus y, in place of and you need to use operation plus 2y z minus y minus x. Now as you can see, you need to use distributive property for the particular expression. So 2x into z minus 2x into x minus 2x into y plus 2y into z, so plus minus become minus, because बाहर में प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर 2y इंटू वाई, फिर से प्लस और माइनस हो गया आपका माइनस 2y इंटू एक्स। तो ये आपका हो गया 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दोगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा। अभी आप देखो कहीं पर लाइक टर्म्स कुछ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, लाइक टर्म्स दिख रहे हैं। कहाँ कहाँ पे लाइक टर्म्स है? इधर आप देख सकते हो xy है, इधर भी xy, तो ये दोनों लाइक टर्म्स आपके हो गए। तो अभी देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2xz है, xz कहीं पे गया नहीं है, लिमिट माइनस 2x² कहीं पे नहीं है, छोड़ो। फिर माइनस 2xy के पास क्या आएगा, ये वाला माइनस 2xy आएगा, फिर प्लस 2yz माइनस 2y²। तो ये आपका हो गया 2xz माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस, और सेम इंटीजर में अगर ऑपरेशन सेम है, आंसर क्या नेगेटिव में आएगा, 2 × 4 xy। फिर ये हो गया आपका प्लस 2yz माइनस 2y²। ये भी सही है। अगर आप ऑर्डर के हिसाब से लिखोगे, पावर के हिसाब से, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हो, ये भी सही है आंसर। फिर ये था आपका एडिशन पार्ट का आंसर। अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर डी में है। डी का क्वेश्चन दिया है कि 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c फ्रॉम 4c माइनस a प्लस b प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन। जैसे आप सबको पता है कि सब्सट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन आपको मैं इसको पूरा सिंपलेस्ट वे में सिखाऊंगा ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या करोगे आप, केस वन में ये सेट ऑफ क्वेश्चन लिख दोगे, 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 3a इंटू a प्लस 3a इंटू b प्लस 3a इंटू c। सिमिलरली माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर सारा ऑपरेशन क्या होगा, रिवर्स,
माइनस 2b इंटू ए, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 2b इंटू बी, फिर माइनस प्लस माइनस 2b इंटू सी। तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। इसके बाद आपका ड्यूटी क्या है, लाइक टर्म्स को ढूंढना। इधर आप देख सकते हो सिर्फ एक ही जगह पे लाइक टर्म्स है, वो है ab ab, दिस टू आर लाइक टर्म्स, तो उनको कनेक्ट करिए। 3a स्क्वायर पावर के हिसाब से लिख सकते हो प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2ab प्लस 3ac माइनस 2bc। तो 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3ab इधर है, 2ab चला गया, बचा कितना, सिर्फ एक ही। तो आप 1ab लिख सकते हो या फिर सिर्फ ab लिखने से भी चलेगा, प्लस 3ac माइनस 2bc। तो यह आपका केस 1 का आंसर। सिमिलरली केस 2 में क्या है, केस 2 में क्वेश्चन है 4c माइनस a प्लस b प्लस c। तो ये आपका हो गया 4c इंटू माइनस a प्लस 4c इंटू b प्लस 4c इंटू c। तो ये आपका माइनस 4ac प्लस 4bc, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दोगे 4 प्लस c स्क्वायर। और इसमें कुछ भी लाइक टर्म आप देख ही नहीं सकते हो, जब है नहीं तो जब देखोगे कैसे। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, केस 3 करेंगे। केस 3 क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो फ्रॉम लगा है, फ्रॉम के बाद क्या, ये वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना है, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर ऑन वन साइड। माइनस सब्ट्रैक्शन बोला तो माइनस सिंबल, फिर इस एक्सप्रेशन का आंसर जो कि इधर आया था 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc। तो हम लोग पहले ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। फिर ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे माइनस आ जाएगा, क्या होगा, सारा ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, उल्टा 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ab माइनस 3a माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2bc। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे, माइनस 4ac, ac का लाइक टर्म कहीं भी देखो इधर है, तो माइनस 3ac। हमेशा सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाने की कोशिश करिए। प्लस 4bc, bc का लाइक टर्म देखिए लास्ट में प्लस 2bc। तो ये दो का काम हो गया। फिर क्या है, प्लस 4c स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है, माइनस 3a स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है, माइनस 2b स्क्वायर का भी लाइक टर्म नहीं है। फिर क्या बचा, माइनस ab और कुछ नहीं। इसके बाद आप क्या करोगे, काउंट कर दोगे कि आपके ऊपर जितने टर्म्स है नीचे उतने हैं नहीं, कुछ अगर मिस भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 3 7, 4 बड़ा है तो माइनस 7ac प्लस 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 4 6bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ab। ऐसा लिखने से होगा, या पावर के हिसाब से भी लिखने से चलेगा। तो इस तरीके से आपका 9.3 एक्सरसाइज कम टू द एंड।